بھرپور مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی عاشقان رسول نے امیر اہل سنت کی صحبت سے فیض پایا۔ سن مدینہ فیصل آباد میں پاکستان مشاورت اور FGRF کے اسلامی بھائی کا مدنی مشورہ۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی تنظیمی اور دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں کیلی گرافی مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی نے بھی وزٹ کیا، طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کی۔ اور FGRF کے تحت بروز بدھ 20 اگست 2025 کو فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے پکے ہوئے کھانے کو مقامی عاشقان رسول میں تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوش آمدید مدنی چینل کے ناظرین، تمام عاشقان رسول کو ماہ ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ فیضان مدینہ کراچی میں علم دین سے بھرپور مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سید امیر اہل سنت SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے۔ سید عمر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں نفل روزے رکھنے کے کیا فضائل ہیں؟ نفل روزے کا تو مطلقاً جو فضائل ہیں وہ ربیع الاول شریف میں بھی، ربیع الاول شریف کے لیے خصوصی کوئی روایات تو مطلب غیر کتابوں میں تو نہیں دیکھی۔ ایک حدیث پاک میں جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ 40 سال کا فاصلہ کہ اتنی دور یہ نفل روزہ جس نے ایک رکھا وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا۔ تو نفل روزے کے بڑے فضائل ہیں، جب نفل کے اتنے فضائل ہیں تو فرض کے کتنے ہوں گے؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ فضائل جو ہیں مطلق نفل روزوں کے وہ ان کو حاصل ہوں گے۔ ربیع الاول شریف میں رکھنا چاہیے۔ ہمارا تو پیکیج بھی اصلاح اعمال جو مجلس دعوت اسلامی، تو اس بار کا پیکیج 12 روزے، تو 12 روزے رکھنے ہیں، تو 12 روزے ربیع الاول شریف میں رکھیں گے۔ پورے ربیع الاول شریف میں 12 روزے ہونے تو 15 چاہیے، لیکن چلو 12 ٹھیک ہے نا۔ تو 12 روزے رکھنے والا جو ہے ممتاز، اس کی فرسٹ کیٹیگری بیسٹ، اور 7 اگر روزے رکھتا ہے پورے مہینے میں تو اس کی کیٹیگری بیٹر، اور جو پورے مہینے میں 5 روزے رکھے تو اس کی کیٹیگری گڈ۔ سارے اچھے ہیں، ممتاز، بہتر، مناسب، بیسٹ، بیٹر، گڈ۔ تو روزے رکھنے کے لیے بھی کمر باندھ لیں، اور روز کے 1500 درود شریف، 1500 جشن ولادت ہے تو ربیع الاول شریف میں روز کے 1500 درود شریف بھی پڑھنے کی جو ہمت کریں تو میٹھا مدینہ، مکہ مدینہ۔ فیضان مدینہ کراچی میں علم دین سے بھرپور مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی عاشقان رسول نے امیر اہل سنت کی صحبت سے فیض پایا۔ کچھ بچے جلوس میلاد میں نیاز زیادہ اکٹھی کر لیتے ہیں، وہ ان سے کھائی نہیں جاتی، تو کیا وہ اپنے والدین یا کسی اور کو کھلا سکتے ہیں؟ کیا بات ہے! اب ایسی نیاز ہے کہ جو مطلب کھائی نہیں جاتی، سمجھو چاول ہے، بریانی ہے، حلوہ ہے، سب پہ ہاتھ مارا ہے، تو گھر میں فریج تو ہے نا، فریج میں رکھ دو، کل کھا لینا، کچھ پرسوں کھا لینا۔ پھر نابالغ بچہ اپنی چیز کسی کو دے نہیں سکتا نا، اور باقی جو سولڈ چیزیں ہوتی ہیں، چاکلیٹ، ٹافیاں، تو بہت دنوں تک چلتی ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لینا۔ ہاں اگر بچہ ضائع کر رہا ہے، اسے تھوڑا کھا لیا، اس کو نہیں کھانا، وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو پھر اگر دوسرا کوئی کھا لے تو وہ جائز ہوتا ہے، ورنہ اس کے استعمال میں یہ آ سکتی ہے تو پھر دوسرا نہیں کھا سکتا۔ انگلینڈ کے ٹاؤن گریوی سینڈ کی سینٹرل مسجد میں دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرا اجتماع، نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سنت و بھرا بیان۔ انگلینڈ کے ٹاؤن گریوی سینڈ کی سینٹرل مسجد میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں قرب و جوار کے مختلف علاقوں سے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی شرکت ہوئی، جبکہ اراکین شورا سمیت ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے، جبکہ مسجد سے متصل مقام پر پردے میں رہتے ہوئے اسلامی بہنیں بھی سنت و بھرے اجتماع میں شریک رہیں۔
सुन्नत भरे इज्तिमा की इब्तिदा में रुकन शुरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया, जबकि इसके बाद निगरान शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने बयान करते हुए औलाद की दीनी माहौल के मुताबिक तरबियत करने का जहन दिया। औलाद को पढ़ाना, औलाद को सिखाना, औलाद को समझाना, औलाद के घर को बसाना, फिर औलाद के घर को बचाना, हमारी जिंदगियां इसी काम की हो जाती हैं। औलाद का सवाल होगा माँ बाप की इताअत की या नहीं, माँ बाप का सवाल होगा तुमने औलाद की तरबियत की या नहीं। कि हमने अपने बच्चों को बैठ कर कभी इस तरह की नसीहतें की, इनको अखलाकियात सिखाए, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाई, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का कोई दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स सिखाया, बेटा बैठो मैं तुम्हें एक मौजज़ा सुनाता हूँ। कितने वाले सामने आते हैं अपने बच्चों को बिठाकर मौजज़े सुनाए। जब बेटी की शादी होती है तो क्या माँ लेकर बेटी, ए बेटी अब अनकरीब तेरी रुखसती होने वाली, तो अनकरीब ऐसे घर में जाएगी जो घर तेरे लिए नया होगा। मेरी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पानी खुद भरकर लाती थी, खाना पकाते पकाते तिलावत क्या करती थी, अपने बच्चों की इस तरह तरबियत क्या करती थी मेरी बेटी, और अपने शौहर की तरह हुकूक अदा क्या करती थी मेरी बेटी। खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत का कोई दर्स दिया? ये वालिद साहब नहीं दिया। 18 साल 20 साल आपने मेरे साथ गुजारे हैं, मुझे आपकी आदतों का पता है, लेकिन बेटा नाज और नखरे हमने उठा लिए। ये जरूरी है कि नाज और नखरे आपके ससुराल में भी उठाए जाएंगे। जब ससुराल में जाओगी, शौहर के पास जाओगी, तो बेटा शौहर के हुकूक ये है, कितने माँ बाप है जो अपनी बेटियों को लेकर बैठे गीबत में ना पड़ना, चुगली में ना पड़ना, झूठी शिकायतों में ना पड़ना, और अगर कुछ हो जाए तो मेरी बेटी सब्र करना, अपने किरदार से आप उस घर में अगर कोई कमजोरी है तो बेटा उसको दूर करना, और हर चीज अपने शौहर की शिकायत बाहर जाकर नहीं करना। क्या वालिद साहब ने बैठ कर समझाया अपनी बेटी को? दौरान बयान निगरान शुरा ने वालिदैन का अदब और एहतराम करने और इनकी इताअत करने की भी तरगीब दिलाई और शरका इज्तिमा को 15वां जश्न विलादत मुस्तफ़ा धूमधाम से मनाने और इसकी दावत आम करने की तरगीब दिलाई, जबकि जश्न विलादत की मुनासबत से कलाम के अशार भी पढ़े गए। दौरान इज्तिमा निगरान शुरा ने इस्लामी भाइयों को सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया अत्तारिया में दाखिल करके शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत दामद बरकातुमुल आलिया का मुरीद बनाया और दुआ करवाई। इख्तिताम पर सलातो सलाम भी पढ़ा गया। इज्तिमा के बाद आशिकान रसूल की निगरान शुरा से मुलाकात का सिलसिला हुआ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी के तहत मुनक़िदा इज्तिमात में शिरकत कीजिए और अजर सवाब पाइए। फैज़ान मदीना इंचन साउथ कोरिया में मुस्तनसर जावेद के मरहूम भाई खावर जमान के लिए ईसाल सवाब इज्तिमा रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया। कुरान खानी फातिहा खानी भी की गई। साउथ कोरिया में ही मुख्तलिफ मकामात पर रुकन शुरा की मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल से मुलाकात और नेकी की दावत। फार ईस्ट के मुल्क साउथ कोरिया के शहर इंचन में कायम मदनी मरकज फैज़ान मदीना में एक ताजिर इस्लामी भाई मुस्तनसर जावेद के छोटे भाई मरहूम खावर जमान के ईसाल सवाब के सिलसिले में सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मरहूम के अजीज और क़ारिब और दोस्त अहबाब समेत बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल और जिम्मेदारान और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी की भी शिरकत हुई। जबकि इज्तिमा में शरीक आशिकान रसूल ने रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी के हमरा मरहूम खावर जमान और दीगर मरहूमीन के ईसाल सवाब के लिए कुरान खानी की। इस मौके पर रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया। दौरान बयान रुकन शुरा ने कब्र आखिरत की तैयारी करने, गुनाहों से बचने और नेक अमाल करते हुए सुन्नतों की इत्तिबा में जिंदगी गुजारने का जहन दिया। इस दौरान रुकन शुरा ने शरका इज्तिमा इस्लामी भाइयों को अपने मरहूमीन को ईसाल सवाब करते रहने की तरगीब दिलाई और 15वें जश्न विलादत मुस्तफ़ा के मौके पर इजहार मुसर्रत करने और खुशियां मनाने का जहन दिया। इज्तिमा के दौरान निगरान साउथ कोरिया मुशावरत ने नेकी की दावत पेश करते हुए फैज़ान मदीना इंचन में होने वाले हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत समेत दावत इस्लामी के दीगर दीनी कामों में हिस्सा लेने और दीन की खिदमत करने का जहन दिया। इख्तिताम पे मरहूम खावर जमान के ईसाल सवाब के लिए फातिहा खानी की गई और रुकन शुरा ने दुआ भी करवाई, जबकि सलातो सलाम भी पढ़ा गया। दूसरे मौके पर इंचन के इलाके सुंगदो में रुकन शुरा ने बिजनेसमैन मुस्तनसर जावेद के ऑफिस में जाकर इनसे मुलाकात की और इनके छोटे भाई मरहूम खावर जमान के साले सवाब के लिए दुआ फातिहा खानी का सिलसिला किया गया। सोंगदो इंचन में ही एक और ताजिर इस्लामी भाई सैयद सफीर शाह और बिलाल इस्लामिक सेंटर सोंगदो इंचन में बिजनेस कम्युनिटी के इस्लामी भाइयों में नेकी की दावत और मुलाकात का सिलसिला हुआ। इस मौके पर 11वीं शरीफ के सिलसिले में हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह समेत दीगर बुजुर्गान दीन और मरहूमीन के लिए साले सवाब और फातिहा खानी का सिलसिला किया गया। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी अपने मरहूमीन को साले सवाब करते रहिए और अजर सवाब पाइए। आगे बढ़े, आपको बताएं फैज़ान मदीना फैसलाबाद में पाकिस्तान मुशावरत और FGI
FGRF کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی تنظیمی اور دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پاکستان مشاورت اور FGRF کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں اراکین شورا پاکستان مشاورت کے دیگر اراکین، نگران مجلس پاکستان مشاورت آفس، نگران مجلس پاکستان FGRF، شعبہ قافلہ، شعبہ اصلاح اعمال، شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان، شعبہ مدنی کورسز اور شعبہ ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرہ کے نگران اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ مدنی مشورے میں FGRF کی موجودہ کارکردگی اور تقرری، تمام ذمہ داران کی JDs کا جائزہ، ڈویژن اور صوبائی نگران کے ساتھ ماہانہ مدنی مشوروں کے لیے آئندہ کا لاہ عمل کیا ہو، FGRF سے متعلق فیڈ بیک پر آنے والی شکایات و تجاویز، اور 1500 میں جشن ولادت کی تیاری کا جائزہ لیا گیا۔ رکن شورا اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کے دینی کاموں کے حوالے سے مزید رہنمائی کی اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ مدنی مشورے کے حوالے سے نگران پاکستان مشاورت نے مدنی خبروں کو بتایا۔ الحمدللہ ہمارا شعبہ یہ فلڈ کے اندر کئی سیلاب آتا ہے یا کوئی زلزلہ آ جائے اللہ نہ کرے تو اس موقع پر جا کر وہ مدد کرتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں بھی بیرون ملک میں بھی اب تک مختلف موقعوں پر کوئی 88 لاکھ افراد کی مدد کی جا چکی۔ پھر پلانٹیشن کا ایک سلسلہ ہے، 32 لاکھ سے زیادہ پودے الحمدللہ لگا چکے اور پودوں کی کیئر کا بھی ذہن ہوتا ہے اور پھر نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ پودا لگانا ہے درخت لگانا ہے۔ ہیلتھ کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ ہمارا یہ شعبہ کام کر رہا ہے، ہاسپٹل، موبائل وین ہے اور مزید بھی اس پر ترکیب ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اسکل انہینسمنٹ پروگرام بھی چل رہا ہے اور پھر مدنی ہوم یعنی یتیم خانہ وزیر تعمیر ہے یتیم بچوں کی بہتری کے لیے۔ FRC بھی اسی شعبے کے تحت ہے، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر جس میں معذور بچوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ کراچی میں 2 ہیں، ایک فیصل آباد میں، ایک لاہور میں ہے۔ مزید بھی انشاءاللہ الکریم یہ بڑھیں گے، ان قریب سیالکوٹ میں شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بلڈ ڈونیشن تو کوئی 74,000 سے زیادہ بلڈ کی بوتلیں جو ہیں وہ ڈونیٹ کی جا چکی ہیں الحمدللہ۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اللہ کی رحمت سے، امیر اہل سنت کی تربیت سے، شرعی رہنمائی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دعوت اسلامی کے دینی کام میں معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حاجی محمد شاہد اتاری نے دعا بھی کروائی۔ دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں کیلی گرافی مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی نے بھی وزٹ کیا، طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی کی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں قائم دعوت اسلامی کی دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کیلی گرافی یعنی خوبصورت انداز میں لکھنے کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی کے طلبہ کرام نے حصہ لیا اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف آیات کو خوبصورت انداز میں تحریر کیا۔ رکن شورا و کنز المدارس بورڈ کے صدر حاجی جنید اتاری مدنی اور دیگر نے طلبہ کرام کی جانب سے تحریر کی گئی خوبصورت تحریر کا جائزہ لیا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ ماہ اگست ماہ شجرکاری، کراچی، ملتان اور اسلام آباد کے مختلف مقامات پر شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے گئے۔ اراکین شورا اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی حصہ لیا۔ دعوت اسلامی کا شعبہ مدنی چینل عام کریں کے تحت کراچی کے علاقے گلبرگ ٹاؤن کے عثمان غنی پارک میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے گئے، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری، تاجروں، شعبہ مدنی چینل عام کریں کے سٹی ذمہ دار، ویسٹ ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی حصہ لیا۔ عاشقان رسول نے پودے لگائے۔ اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، اب تک دعوت اسلامی جو ہے الحمدللہ 32 لاکھ پودے لگا چکی ہے اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو ہمیں پلانٹیشن کرنے ہیں، درخت لگانے، انشاءاللہ درخت سے جڑی بوٹیاں ملتی ہے، درخت سے الحمدللہ پھل ملتے ہیں، درخت جو ہے وہ سیلاب کو روکنے کے بھی کام آتا ہے۔ ادھر کراچی کے ہی علاقے نیو کراچی سیکٹر 5B3 میں بھی شعبہ مدنی چینل عام کریں کے تحت شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے گئے۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے نجی دفتر میں آنر اور دیگر سے ملاقات کی اور انہیں شجرکاری مہم کے حوالے سے بتایا۔ بعد میں رکن شورا نے شخصیات کے ہمراہ پودے لگائے۔ اس حوالے سے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے حاجی محمد امین اتاری نے بتایا، اسکول کے اطراف میں ایک جگہ ہم جمع ہیں اور کہا یہی جاتا ہے کہ یہ وقت میں یہ بھی پارک تھا، خوبصورت پارک تھا، دوبارہ ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج جو ہم پودے لگا رہے ہیں اس کو نہ صرف درخت بھی بنائیں گے
बल्कि इंशाअल्लाह इस पूरे इलाके को सरसब्ज़ व शादाब कर देंगे। हम सब नियत करें कि इन दिनों में इंशाअल्लाह पौधे लगाएंगे और इन पौधों की देखभाल करके इसको दरख्त भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। शख्सियात ने भी दावत इस्लामी की दीनी और फलाही खिदमात और शजरकारी मुहिम को सराहते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उधर पंजाब के शहर मदीनतुल औलिया मुल्तान में कायम एक फैक्ट्री में भी शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया, जिसमें रुकन शुरा हाजी मोहम्मद सलीम अत्तारी, फैक्ट्री डायरेक्टर व दीगर ने पौधा लगाया। इस मौके पर रुकन शुरा ने मुल्क को मिल्लत की सलामती के लिए दुआए खैर करवाई, जबकि फैक्ट्री डायरेक्टर ने मदरी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। यहाँ पे प्लांटेशन के हवाले से जो है पौधा लगाया है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारी नीयत है कि हम अमीर अहले सुन्नत के फरमान के मुताबिक इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मज़ीद भी इस तरह के पौधे लगाएंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उनको दरख्त बनाएंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में कायम मदरी मरकज फैज़ान मदीना में भी शजरकारी मुहिम का सिलसिला हुआ, जिसमें रुकन शुरा हाजी वकारुल मदीना अत्तारी, MN इस्लामाबाद अंजुम अकील खान और दीगर इस्लामी भाइयों ने हिस्सा लिया। जबकि मिंबर कौमी असम्बली अंजुम अकील खान ने भी दावत इस्लामी की काविशों को सराहा और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। ये एक पौधा नहीं है, बल्कि ये आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा अजर है कि जिससे वो मुफीद होंगे। मैं दावत इस्लामी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बेहतरीन हमें मौका अता फरमाया। मुख्तलिफ शोबाजात के तहत कराची, रावलपिंडी, सक्खर और वारबर्टन में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट शोबा राब्ता बराए शख्सियात और FGRF के तहत इस्लामी भाइयों ने डायरेक्टर फिल्म्स एंड मीडिया हिजबुल्लाह मेमन, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुइजुद्दीन पीरजादा, डायरेक्टर एडमिन मंसूर अहमद राजपूत समेत दीगर अफसरान और स्टाफ से मुलाकात की और उन्हें दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात का तारुफ पेश किया और मुल्क भर में होने वाली शजरकारी मुहिम से मुतालिक आगाही देते हुए उन्हें भी डिपार्टमेंट के अहाते में पौधे लगाने की तरगीब दिलाई, जिस पर शख्सियात ने मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। दावत इस्लामी का ये एक ऐसा इक़दाम है कि वो हमें भी याद रखते हैं और इसमें सवाब कार खैर में हमें भी शामिल करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी सारी रहे और हमारा जो भी ताउन है इनको हासिल रहेगा इंशाल्लाह, और हम इनके हर कदम में इनके साथ होंगे। शजरकारी की मुहिम हर किसी को भी करनी चाहिए और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि दोस्त हर साल आते हैं और यहाँ शजरकारी का सिलसिला बनता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो चीज़ है जिसका सवाब जारिया है। तो सब दोस्तों की मेहरबानी कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। बाद में अफसरान और शोबा राब्ता बराए शख्सियात के इस्लामी भाइयों ने शजरकारी मुहिम के तहत इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध सेक्रेटेरिएट के अहाते में पौधे भी लगाए। इस मौके पर दुआ भी करवाई गई। उधर रावलपिंडी में वाक़ इकबाल पार्क में भी FGRF के तहत पौधे लगाए गए। इससे पहले एक मीटअप हुआ जिसमें DGPHA अहमद हुसैन राजा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी खालिद फारूक काजी, सियासी शख्सियात और दीगर ने भी शिरकत की। तिलावत और कलाम के बाद मुबल्लिग दावत इस्लामी ने आशिकान रसूल को दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात से मुताल्लिक आगाही दी और आलमी सतह पर होने वाले दीन और फलाही कामों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। अफसरान ने FGRF के इस्लामी भाइयों के हमरा पौधे भी लगाए। शख्सियात ने दावत इस्लामी की काविशों को सराहा और मतनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। दावत इस्लामी माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रही है। जिस तरह खूबसूरत नाम है इसी तरह के खूबसूरत काम हो रहे हैं। एक बड़ी बहुत अच्छी एफर्ट है माशाल्लाह। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं दावत इस्लामी का एक ये जो ग्रेट इनिशिएटिव है और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी सपोर्ट है आपके साथ इंशाल्लाह। तो हम जहाँ पे भी प्लांटेशन ड्राइव है रावलपिंडी चैम्बर की आपके साथ खड़ा है इंशाल्लाह। माशाल्लाह FGRF के तहत ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है कि ये पौधे लगाना है। ये बहुत बड़ा स्वाब का काम भी है। माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसी की तरगीब दी है। मीडिया डिपार्टमेंट के निगरान और दीगर इस्लामी भाइयों ने सिंध के शहर सक्खर में कायम प्रेस क्लब में सदर प्रेस क्लब आसिफ जहीर लोधी, सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मोहम्मद सलीम और दीगर से मुलाकात की। निगरान मजलिस ने सहाफियों को दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात का तारुफ पेश किया और दीनी फलाही कामों से मुतालिक आगाही दी। 1500वां जश्न विलादत धूमधाम से मनाने और पौधे लगाने की तरकीब दिलाई गई और मकतबतुल मदीना की किताब आदाब जिंदगी तोहफे में दी गई। सहाफियों ने प्रेस क्लब सक्खर में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए। दूसरी जानिब पंजाब के शहर वारबर्टन में भी FGRF के तहत शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे लगाए गए, जिसमें राय आसिफ खर कोऑर्डिनेटर MNA, राना इमरान कोऑर्डिनेटर MPA, सहाफी लबीब मुगल, गुलाम मुस्तफा, तबस्सुम, उस्मान सुंदराना और दीगर ने हिस्सा लिया। अल्लाह की रहमत से वारबर्टन में दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत 5000 पौधे फ्री तकसीम करने की नीयत है। ये भी मैं बताता चलूँ दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत पंजाब में 7 लाख पौधा इस सीजन में जो है लगाने का हदफ लिया गया। शुजाबाद में डॉक्टर हसीब, चीफ ऑफिसर TMA जफर अब्बास और रेस्क्यू 1112 जूनियर स्टेशन इंचार्ज से मुलाकातें। FGRF के इस्लामी भाइयों ने शख्सियात को शोबे के तहत होने वाली शजरकारी मुहिम के हवाले से बताया। पंजाब के शहर शुजाबाद में डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट निगरान शुजाबाद, FGRF के सूबाई जिम्मेदार और दीगर इस्लामी भाइयों ने THQ हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हसीब अहमद खोकर से मुलाकात की और उन्हें FGRF के तहत होने वाली शजरकारी मुहिम के हवाले से बताया। इस मौके पर अस्पताल में अर्बन फॉरेस्ट लगाने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, जिस पर डॉक्टर हसीब अहमद खोकर ने दावत इस्लामी की काविशों को सराहा और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस मौके पर इस्लामी भाइयों ने अर्बन फॉरेस्ट लगाने के हवाले से एक प्लॉट का जायजा भी लिया। डिस्ट्रिक्ट निगरान शुजाबाद ने FGRF के इस्लामी भाइयों के हमरा TMA शुजाबाद के चीफ ऑफिसर जफर अब्बास भट्टी से भी उनके ऑफिस में मुलाकात की और उन्हें फैजान मदीना शुजाबाद का विजिट करने की दावत पेश की। इस मौके पर इस्लामी भाइयों ने दरख्त लगाइए सवाब कमाइए रिसाला तोहफे में पेश किया और FGRF के तहत जारी फलाही खिदमात और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए शजरकारी की अहमियत पर भी ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट निगरान शुजाबाद सूबाई जिम्मेदार FGRF पंजाब और दीगर ने रेस्क्यू 1122 शुजाबाद के जूनियर स्टेशन इंचार्ज नौशेरवान आदिल से मुलाकात की और उन्हें शजरकारी मुहिम के हवाले से बताया। इस मौके पर रेस्क्यू 1122 ऑफिस के बाहर पौधा भी लगाया गया। रेस्क्यू ऑफिसर ने मतनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। कुछ पौधे लगाए गए हैं, तो मजीद भी इन फ्यूचर इंशाल्लाह दावत इस्लामी के साथ मिलकर कॉपरेशन के साथ इंशाल्लाह मजीद भी ज्यादा से ज्यादा शजरकारी मुहिम जारी रखी जाएगी। शुक्रिया। कल बरोज मंगल 26 अगस्त को मदनी मरकज फैजान मदीना सेक्टर G11 इस्लामाबाद में ऑडिशन होगा। आज होने वाले ऑडिशन में मुख्तलिफ शवाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल ने हिस्सा लिया। इस्लामी बहनों में दीनी कामों को बढ़ाने के लिए डेरा गाजी खान में जिम्मेदार इस्लामी बहनों के लिए सेशन हुआ। साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत ने जिम्मेदारान की तंजीमी उमूर के अहम निकात पर रहनुमाई की। दावत इस्लामी के तहत इस्लामी बहनों में दीनी कामों को अहसन अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए डिवीजन डेरा गाजी खान में जिम्मेदार इस्लामी बहनों के लिए एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील निगरान और शोबा जिम्मेदारान और UC निगरानों ने शिरकत की। साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत ने फराइज और नवाफिल और मुस्तहब्बात के फजाइल और अहमियत को बयान करते हुए इस्लामी बहनों को ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने और नेक अमाल का रिसाला पुर करने की तरगीब दी। सेशन के दौरान डिवीजन सतह पर दीनी कामों की हालिया कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया और जिम्मेदारान की तंजीमी उमूर के अहम निकात पर रहनुमाई की और आइंदा के अहदाफ भी दिए। आखिर में दुआ हुई, जिसके बाद सेशन में शरीक इस्लामी बहनों ने साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात भी की। निगरानी पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन का डिवीजन मीरपुर खास सिंध जामियातुल मदीना गौस जिलानी का विजिट। डिवीजन की तमाम जिम्मेदारान के लिए मुनाकिदा सेशन में हालिया कारकर्दगी का जायजा और आइंदा के अहदाफ दिए। निगरानी पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने सिंध के शहर मीरपुर खास में कायम जामियातुल मदीना गौस जिलानी का विजिट किया और वहाँ दौरतुल हदीस शरीफ की तालिबात से मुलाकात करके इन्हें दावत इस्लामी के दीनी कामों में भरपूर हिस्सा लेने की तरगीब दी, जिस पर तालिबात ने अच्छी नीयतों का इजहार किया। नीज मीरपुर खास में इस्लामी बहनों के लिए एक सेशन का भी इनेकाद हुआ, जिसमें निगरान सूबा सिंध, डिवीजन निगरान मीरपुर खास, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और टाउन, UC निगरान और दीगर जिम्मेदार इस्लामी बहनों ने शिरकत की। निगरानी पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने सेशन के दौरान डिवीजन मीरपुर खास में होने वाले दीनी कामों की हालिया कारकर्दगी का जायजा लिया और आइंदा के लिए भी अहदाफ दिए और नेकी की दावत को आम करने की तरगीब दिलाई, जिसमें जिम्मेदार इस्लामी बहनों ने अच्छी नीयतों का इजहार किया। इस दौरान इस्लामी बहनों में दीनी कामों को मजीद बढ़ाने के लिए रहनुमाई की गई। FGRF के तहत बरोज बुध 20 अगस्त 2025 को फलस्तीनी आशिकान रसूल के लिए खाने का एहतमाम किया गया। दुखियारी उम्मत की खैरखाई के लिए पके हुए खाने को मकामी आशिकान रसूल में तकसीम करने का सिलसिला हुआ। गजा फलस्तीन के मुकीम आशिकान रसूल की खैर ख्वाही और फलाह के जज्बे को लिए अपनी खिदमात को जारी रखते हुए अगस्त 2025 को आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी की शोबा FGRF के तहत खाना पकाने का सिलसिला किया गया। मुसलमानों की खबरगिरी और खैर ख्वाही करते हुए खाने की तकसीम के हवाले से मदनी खबरों को बताया गया। أمام هذا الجهد الطيب المبارك بتنفيذ المشروع الرابع الوجبات الطعام الساخنة. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. سنقوم بتقديم هنا في شمال قطاع غزة بتاريخ هذا اليوم 20/8 العام 2025. जबकि FGRF के तहत पकाए गए खाने को गजा फलस्तीन के मुकीम आशिकान रसूल के बच्चों और बड़ों समेत इनकी फैमिलीज में तकसीम करने का सिलसिला भी हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खैर ख्वाही के लिए खाना पकाने की इस मुहिम को मकामी आशिकान रसूल की जानिब से सराहा भी गया और इस फलाही काम पर FGRF का शुक्रिया अदा करते हुए इन आशिकान रसूल ने अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दावत इस्लामी और इसके शोबे FGRF को दुआओं से नवाजा। मदनी चैनल के नाजरीन, वक्तन फवक्तन आशिकान
रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी का शोबा FGRF दुखियारी उम्मत की खैर ख्वाही और इमदादी कामों को जारी रखते हुए गजा फलस्तीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर अशिया ज़रूरिया की तकसीम करता है। लिहाजा आप नाज़रीन भी दावत इस्लामी के तहत दीनी और फलाही कामों में पेश रहते हुए दीन मतीन की खिदमत और फलाही कामों में अपना हिस्सा शामिल कीजिए। नेकी की दावत की धूमें मचाएंगे, 1500वां जश्न विलादत मनाएंगे। मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मजीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, आज 25 अगस्त के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। खबर है ये आम दीदार मुस्तफा। रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। रबीउल अव्वल शरीफ में दुरूद और सलाम पढ़ने का खूब एहतमाम कीजिए और माह रबीउल अव्वल की पहली तारीख से 12 तारीख तक ये दुरूद पाक पढ़ना अफजल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबीशिल उम्मीशी व अला आलिही व बारिक वसल्लिम। जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़कर बावजू सो जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ख्वाब में